Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I am Nida, your educator, and today we are going to revise or discuss the two important chapters of macroeconomics, that is balance of payment, and the next is foreign exchange rate. Okay, I'm going to discuss the PYQs, and remember PYQs are not just practice questions, they are exam indicators, and I'm going to provide you answer key also of all the questions. Revise them once again, and if you are serious about scoring above 90 in economics, don't miss the upcoming score booster series. And those who are new, you may go to the playlist that is already updated, okay, on my channel, that is Economics at Ease. All the unsolved practicals with solutions have been provided, each and every chapter, the summary, and many more things are also added in the score booster series. Chapter wise PYQs are also being given, and I'm also giving you here the live classes also, okay, so you can just attend that also to score full marks in economics. Okay, so for that, please do like, share, and subscribe. So now again here I'm going to just first give you the questions. Okay, you can take the screenshot. The questions, they are mixed up of balance of payment and foreign exchange rate. You can take the screenshot one by one, and then we are going to discuss the answers of all the questions. Okay, that's it. Okay, now here comes the first question. You can take the screenshot of all these answers also. Afterwards, we're going to discuss that. First, here the question is from balance of payment. Discuss briefly the meaning of fixed exchange rate. Okay, the fixed exchange rate is what? Fixed means that does not change. Okay, इसका मतलब ये हो गया fixed का मतलब that does not change to demand and supply, and it is maintained through government intervention. Okay, so fixed by the government or the central bank. Okay, meaning is clear. Then flexible exchange rate, it means flexibility होगी, changes होंगे. So it is determined by demand and supply of foreign exchange in the market. There is no direct government intervention in fixing the exchange rate. Okay, that is for just 2 marks. Okay, then managed floating exchange rate अगर पूछा जाएगा, managed floating is what? That is a हाइब्रिड है ये, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है. इट इज मेनली डिटर्मिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई, बट द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इंटरवीन ओकेजनली to control excessive fluctuations. It is a combination of both, that is fixed and flexible exchange rate system. Okay, तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इस तरह इसको आंसर करना है. देन क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ट्रेड सरप्लस. ट्रेड सरप्लस क्या होता है? दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है आपका, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज मोर देन इम्पोर्ट्स. ओके, ट्रेड में क्या होता है? दो तरह की होती हैं आपकी चीजें, दैट इज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. ट्रेड में हम ये पढ़ते हैं, तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा इम्पोर्ट से, दैट मीन्स वी आर गेटिंग बेनिफिट और प्रॉफिट और सरप्लस, ओके, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, गिवन पीरियड. देन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम करंट अकाउंट सरप्लस? अब देखो यहाँ पे ट्रेड सरप्लस का सबसे पहले, जब भी वेन एवर यू आर गेटिंग डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन और डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो हमेशा प्लीज यू हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ अ टेबल ऑन विच फर्स्ट आपको टेबल पे जो पार्ट होगा आपका वो बेसिस का होगा, यानी कि आपको बताना होगा कि किस किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं दो चीज़ों को. देन द मेन हेडिंग ऑफ बोथ द थिंग्स, ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब इट जस्ट इन अ सेंटेंस. ओके, नॉट मोर देन दैट, उतना काफ़ी है इसके लिए, ठीक है. और इसमें आपको स्कोर करेंगे ज़्यादा मार्क्स इस तरह से अगर आप प्रेजेंटेशन रखेंगे, राइट. So trade surplus, as we have already told, that is exports are more than imports. Current account surplus क्या होगा? Total receipts is more than total payments on current account. Okay. Then coverage, it includes only visible items, and current account क्या करेगा? Includes करेगा only goods and services, incomes and transfers. Okay. Then scope, it has a narrow scope. Okay, and it has a broader concept. Okay, now let's start the other part. B part इसका है, Indian rupee plunged to all-time low of 74.48 against the US dollar. Okay. So in the light of the above report, discuss the impact of situation of Indian imports. तो इंडियन रुपी क्या फॉल कर रहा है? इट मीन्स रुपी हैज डिप्रिशिएटेड. इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इंपोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, राइज इन इन्फ्लेशन हो जाएगा, इन रिडक्शन इन इम्पोर्ट डिमांड, एंड देन वन लाइन explanation. Okay, then next is here 3A question, differentiate between the concepts of. अच्छा, अब हम 3A डिस्कस कर रहे हैं.
concept of demand for goods and service, domestic demand for goods and services and domestic demand for goods and services. Demand for goods and services है, टोटल डिमांड हो गया, इसका मतलब डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि टोटल डिमांड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, डोमेस्टिक टेरिटरी में विद इन द कंट्री है। ओके, देन इंक्लूड्स अगर द डिमांड बाय रेजिडेंट्स एक्सपोर्ट करता है इंक्लूड, और इसमें क्या है, डिमांड बाय द रेजिडेंट्स फॉर डोमेस्टिक गुड्स प्लस इंपोर्टेड गुड्स। ओके, देन एक्सक्लूड्स क्या करता है, इसमें इंपोर्ट्स नहीं आते हैं डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज में, और इसमें एक्सपोर्ट्स नहीं आती हैं, राइट। देन फॉर्मूला इज ऑल्सो बीन गिवन। Then distinguish between current account and current account deficit and current account surplus। अच्छा, तो current account आपको पता ही है, when total payment on current account exceeds total receipts, deficit हो रहा है मतलब loss हो रहा है, surplus मतलब आपको profit हो रहा है, ठीक है। when the receipts on current account is more than payments, okay, then outflow of foreign exchange is more than inflow, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्या कर रहा है, आउटफ्लो ज्यादा करेगा जब डेफिसिट होगा, और सरप्लस में क्या होगा, इनफ्लो ज्यादा होगा। इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी मे लीड टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, जब डेफिसिट होगा तो आप बाहर से पैसा लोगे, एंड इंक्रीजेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब सरप्लस होगा ज्यादा पैसा आपके पास आ रहा है, राइट। बैलेंस पोजीशन क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है, ये फेवरेबल बैलेंस होता है, राइट। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर नाउ। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, हाँ यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे दिया, डेफिसिट मीन्स द कंट्री इज स्पेंडिंग मोर फॉरेन एक्सचेंज देन इट अर्न्स, एंड सरप्लस मीन्स द कंट्री इज अर्निंग मोर फॉरेन एक्सचेंज देन इट स्पेंड्स, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3 ए। अच्छा, ए बी पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में 3 क्वेश्चंस हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चनर है, ओके। तो इसमें क्या, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या स्टेटमेंट है, पहले लेट मी रीड दैट। Recently, Indian rupee has depreciated significantly. Okay, ठीक है, this has led to distress for Indian importers. Defend or refute the given statement with valid reasons. Okay, तो इसमें क्या, the statement is defend. When the Indian rupee is depreciated, it means more rupees are required to buy 1 unit of foreign exchange. Okay, like US डॉलर। ओके, तो ये तो हमें पता है, होता है यही। रीजंस क्या है, अगेन वही सेम रीजन है, इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर, इंक्रीज इन इंपोर्ट बिल, रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन, राइज इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो भी हमने पहले डिस्कस किया था वही सेम चीज़ है। देयरफॉर डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी कॉजेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू इंडियन इंपोर्टर्स at as their cost of import rises. Okay, so this statement is correct. Okay, then the next part is, इसमें क्या पूछ रहे हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ट्रेड का क्या होता था आपका, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का लॉस चल रहा है, ठीक है। व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एक्सीड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, एंड व्हेन टोटल पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट एक्सीड टोटल रिसीट्स। ओके, कवरेज क्या होगा, वही विजिबल आइटम्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, आई थिंक इट्स ऑल्सो, हाँ, रिपीटेड। ओके, पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट है, ट्रेड वाला आपका क्या है, एक अकाउंट, ये जो है पहले आप उसको बनाते ही है ना, करंट अकाउंट के अंडर ही में ही आता है, एंड इंक्लूड्स ट्रेड डेफिसिट अलॉन्ग विद अदर कंपोनेंट्स। ओके, imbalance of trade होता है ट्रेड डेफिसिट, एंड करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्लूड ट्रेड डेफिसिट प्लस imbalance इन सर्विसेज है, इनकम्स एंड ट्रांसफर्स। ओके, देन रिलेशनशिप बिटवीन फॉल इन प्राइस ऑफ यूएस डॉलर एंड इट्स डिमांड, यानी कि प्राइस ऑफ यूएस डॉलर में और उसकी डिमांड में क्या होता है, वी नो इट वेरी वेल, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज हियर, एंड एज द प्राइसेस राइजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप आपकी आती है प्राइस और डिमांड की, आपको याद होना चाहिए। दिस इज एन इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ डॉलर एंड इट्स डिमांड। व्हेन द प्राइस ऑफ अ डॉलर फॉल्स, द डॉलर बिकम्स चीपर. As a result, the demand for dollar increases. This happens due to the law of demand. Thus, fall in price of a dollar leads to a rise in its demand. Okay, I hope it's quite clear. जो पढ़ते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स उनको पता होगा, लॉ ऑफ डिमांड ही यहाँ पे ऑपरेट करेगा। Then distinguish between autonomous items and accommodating items. Now again difference between आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, you have to make the columns, the bases, and then the heading of both the things whatever has been asked. Okay, so meaning आपका क्या है, transactions that are undertaken independently of the BOP position। accommodating में क्या होता है, फाइनेंस करता है BOP डेफिसिट को या सरप्लस को, राइट। मोटिव क्या है, मेन इकोनॉमिक मोटिव होता है ऑटोनोमस का, ठीक है। एंड अकोमोडेटिंग में क्या होता है, करेक्ट इम्बैलेंस इन BOP। अच्छा, मैं ऑटो से याद रखती हूँ कि ऑटो तो चलाता है तो उसका एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, तो मुझे, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी पहले, भाई क्या
डिफरेंस कैसे याद रखा जाएगा, तो मैं तो भाई इस तरह याद रखती हूँ कि ऑटो चलाने वाला क्या होता है, इसका एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ही हैज टू अर्न मनी, प्रॉफिट मोटिव है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें ये डिफरेंशिएट इस तरह याद कर लेंगे, ये अबव द लाइन आइटम्स हैं, ये बिलो द लाइन आइटम्स हैं। ठीक है, ऑटो में क्या होगा, अबव द लाइन है, और कमोडिटी में बिलो द लाइन है। एग्जाम्पल क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इसमें क्या हो जाएगा, कमोडिटी में चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ऑटोनमस में क्या होता है, बीओपी डेफिसिट होगा, यस इट इज कॉस्ट बिकॉज ऑफ बीओपी डेफिसिट और सरप्लस, एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स आर यूज्ड टू करेक्ट डेफिसिट और सरप्लस। ओके, ये करेक्शन के लिए होता है कमोडिटी। और ऑटोनोमस में क्या होता है, ये होता है इसीलिए जिस बिकॉज ऑफ बीओपी डेफिसिट या सरप्लस में जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। नाउ आइटम्स इसमें आपको गिवन है क्वेश्चन में, बैंकिंग, शिपिंग, मर्केंडाइज एंड इंश्योरेंस। ओके, तो आपका आंसर है मर्केंडाइज। Physical goods and that can be seen enters such as machinery, clothes, etc., cars. Okay, and balance of trade includes only exports and imports of visible items and goods. Okay, so these are the answer. और ये सब क्या है, इनविजिबल आइटम्स है आपकी, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस। ओके, तो इसलिए ये नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया। तो इसमें आपका आंसर है ऑड वन आउट परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड। ओके, बिकॉज ये दो बाकी चीजें क्या आपकी कैपिटल इनफ्लो है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इन्वेस्टर है, लोन रिसीव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया है, एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ऑल दीज आर कैपिटल इनफ्लो। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है हम परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड को इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है करंट अकाउंट में, इसलिए ये ऑड वन आउट है। देन ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री आर कॉल्ड एज डैश। क्वेश्चन नंबर 6, तो ऑप्शन आपका 2 है ओनली करेक्ट आंसर, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। तो मीनिंग है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज विद द अदर कंट्री। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पे मीनिंग इसमें दिया हुआ है। तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री। और फॉरेन एड का मतलब क्या होता है, आप इसको किसी को टेक्निकल या फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, एड प्रोवाइड कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 7, you have to just open it up. From the following statement, choose the correct statement. Okay, trade deficit, तो ये आपका इसमें आप रीड कर लीजिएगा। एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट अकर्स व्हेन करंट फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट्स ऑन करंट अकाउंट आर लेस देन फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट। ओके, तो इसमें ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या, इंपोर्ट्स ऑफ गुड एक्सीड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड। ट्रेड डेफिसिट बोल रहा है ना, तो डेफिसिट में तो ये नहीं होता, नॉट द अदर वे राउंड। ओके, so it is incorrect. Then trade surplus means export of goods exceed imports of goods, not imports exceeding exports. ठीक है, ओके, जो इसमें स्टेटमेंट दिए हैं उसमें ट्रेड डेफिसिट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। डेफिसिट में एक्सपोर्ट थोड़ी ना ज़्यादा होता है ना, तो इसमें यह क्या होगा, इम्पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट गलत है, इसका रीज़न यहाँ पे दिया है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, रीज़न यहाँ पे गिवन है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 8, borrowing from rest of the world, from the following which of the item would appear on the credit side of the capital of the balance of payment in India। तो बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएगा आपका। ठीक है, क्रेडिट साइड पे बाकी से क्या है, ये आपका एजुकेशन वाला करंट अकाउंट के डेट साइड पे चला जाएगा। एंड अर्थक्वेक रिलीफ एड सर्विस फ्रॉम फ्रांस यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे। एंड देन इंपोर्ट्स ऑफ एडिबल ऑयल, इंपोर्ट्स ऑफ गुड, करंट अकाउंट डेट साइड। ओके, डेबिट साइड पे आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो इसका क्वेश्चन में ऑप्शंस देख लीजिएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग शेयर्स इन द इंडियन मार्केट, दैट इज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें से आपका क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो ये है एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी इज एन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सो इट इज रिकॉर्डेड इन द करेंट अकाउंट। ओके, ठीक है, नॉट कैपिटल अकाउंट, तो ये स्टेटमेंट आपका ऑड वन आउट में है। देन 11, इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन शोज डेफिसिट, यानी कि ये डेफिसिट दिखा रहा है, ठीक है, लॉस दिखा रहा है 300 का। ओके, एंड यहाँ पे क्या है ये, जस्ट वेट, देखो ये बोल रहा है ट्रेड डेफिसिट। ओके, तो ये आपका आ गया ट्रेड का,
ठीक है। ट्रेड में क्या होता है, बीओटी इज इक्वल्स टू, या जो भी कर दें, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू, या आप कह सकते हैं यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट दिखा रहा है, बल्कि बैलेंस ऑफ ट्रेड ही रखो। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये -300 है गिवन। ठीक है। एक्सपोर्ट्स इज 400। ओके। ट्रांसफर पेमेंट्स -50 नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके। तो इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू, ये मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया, सिंस देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 300। तो इसमें पूछ क्या रहे हैं, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स पूछ रहा है। ओके। इम्पोर्ट्स आपको कैलकुलेट करना है। तो इम्पोर्ट्स के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, इम्पोर्ट्स को हम इधर कर लेंगे, एंड 400 प्लस 300, तो इम्पोर्ट्स आ गए आपके 700 करोड़। प्लीज डू मेंशन दिस, रुपीज और करोड़ जरूर लगाना है। ठीक है। सो इम्पोर्ट्स आर ₹700 इज योर आंसर। ये इस तरह आप करके वर्किंग दिखाएंगे। ठीक है, व्हाट दे आर आस्किंग एंड देन हाउ यू गोइंग टू सॉल्व, यू हैव टू शो दैट। ये करना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। खाली आंसर मतलब, इसमें तो एमसीक्यू है, एमसीक्यू ना होता तो, ठीक है, तो उसमें जरूर से मेंशन करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट assertion, choose one of the correct alternative. ओके, assertion है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज अ हाइब्रिड सिस्टम। तो मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, ट्रू है। ठीक है, यही होता है, हाइब्रिड सिस्टम होता है ना। Then managed floating exchange rate system is a combination of flexible and fixed exchange rate system. ये भी true है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही में ये पढ़ा था, मीनिंग ऑफ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हाइब्रिड है, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो बोथ आर करेक्ट। ओके, द रीजन hybrid system be precisely because it combines the features of both fixed and flexible exchange rate system. Okay, then question number 13, 13 में क्या है, considering the depreciation of Indian currency in the international market, Reserve Bank of India has decided to purchase Indian currency in the open market. तो इसका मतलब क्या है, it represent what kind, which kind of exchange rate system। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मैनेज फ्लोटिंग, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन्स कर रहा है यहाँ पे इंडियन करेंसी एंड परचेजिंग द इंडियन करेंसी इन द ओपन मार्केट। ओके, तो यहाँ पे इसलिए क्या आ जाएगा आपका, मैनेज फ्लोटिंग रीजन आ जाएगा। ओके। Then question number 14, deficit in the balance of payment refers to the excess of। balance of payment में अगर आ जाएगा आपका deficit, then it is what, autonomous items are transactions undertaken independently like imports, export, investment, etc. If autonomous payments are more than autonomous receipts, it create a deficit in BOP। ठीक है, तो इसका जो है आपका वाई अदर्स आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, बिकॉज ऑटोनमस पेमेंट्स ओवर ऑटोनमस रिसिप्ट्स। ओके, देन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, वाई इट इज इनकरेक्ट, द रीजंस आर आल्सो बीइंग गिवन टू यू, जस्ट गो थ्रू दैट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, suppose the price of the UK of 1 UK pound has increased from 70 to 80 owing to market forces, the mean then this means that the value of Indian currency has, क्या हो जाएगा, इट मीन्स मोर रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाय 1 पाउंड। इसकी वैल्यू बढ़ गई है ना, इंक्रीज कर गई है, तो यहाँ 70 से 80 चला गया है। तो ऑप्शन बी क्या है, डेप्रिशिएटेड, इंडियन करेंसी क्या है, डेप्रिशिएट कर गया है, राइट। सिंस द चेंज इज ड्यू टू मार्केट फोर्स, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन नॉट डिवैल्यूएशन विच इज डन बाय द गवर्नमेंट। ओके, देन इसका दूसरा क्वेश्चन है, suppose country X has more inflation than country Y, which of the following is most likely situation to happen in such a case, assuming other factors being constant। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट एंड इसका ये हो जाएगा, डेट इज कंट्री एक्स को क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, तो कंट्री एक्स का अगर होगा ट्रेड डेफिसिट होगा, तो हायर इन्फ्लेशन देन कंट्री वाई, गुड इन एक्स कंट्री बिकम्स रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, डेफिसिट है इसलिए एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री एक्स डिक्रीजेस एंड इम्पोर्ट्स इंक्रीजेस। तो वही सेम क्वेश्चन जो हमने शुरू में कर रहे थे वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, इट्स ऑल्सो बीन मेंशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, गिविंग वैलिड रीजन स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो पहला जो है आपका वो फॉल्स है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ओके, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द current account, not the capital account। ठीक है, and it's treated as a income from abroad। then
सेकंड इसका क्या क्वेश्चन था, 16 का ही बी पार्ट था, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी विल लीड टू प्रमोशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। दिस इज ट्रू। when Indian currency depreciate करेगी तो Indian goods become cheaper for foreign buyers and they are going to take more, okay, purchase more goods, which increases demand for Indian exports and promote exports, okay। देन इसका ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोनमस एंड अकोमोडेटिंग। तो ऑटोनमस में क्या होता है, आपका जो है अबव द लाइन आइटम्स होते हैं, इकोनॉमिक मोटिव होता है एंड कॉजेज बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और सरप्लस। एंड अकोमोडेटिंग में क्या होता है, इट इज डन टू मेंटेन बैलेंस इन बीओपी। बिलो द लाइन आइटम्स होते हैं फाइनेंस और एडजस्ट द डेफिसिट सरप्लस एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, ओके। देन द नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ इन एन इकोनॉमी द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज शोइंग डेफिसिट। अब देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड में फिर से यहाँ पे डेफिसिट आ गया, मींस लॉस आ गया, माइनस में, जैसे अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही है। बस यहाँ पे क्या इंपोर्ट्स गिवन है, तो हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट्स फाइंड आउट करने हैं, ओके। सिंस देयर इज अ डेफिसिट तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से उधर बस खाली करना है, माइनस और प्लस वाला, एंड यू विल गेट द आंसर 700 अगेन। उसमें भी 700 था, इसमें भी 700 है, राइट। कैसे आ जाएगा, आप जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है माइनस में आपने वो लिख दिया, ठीक है, 200। और इम्पोर्ट्स आपके क्या आ जाएंगे, माइनस में आएगा तो माइनस माइनस, ठीक है। देखो ऐसे करोगे, जिनको समझ में नहीं आएगा उनके लिए मैं बता रही हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका गिवन है, डेफिसिट है ना, तो ये बैलेंस देखो, ये फॉर्मूला हो गया, दिस इज योर फॉर्मूला, ओके। इसी तरह लिखेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू दिस, एक्सपोर्ट्स मुझे पता करने हैं और इम्पोर्ट्स कितना है, 900, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस में आ गया, मान लो 900 माइनस 200, तो ये आ गया आपका 700। ये आपके एक्सपोर्ट्स हो गए, ओके। सो नाउ यू आर गोइंग टू राइट हियर एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू रुपीज 700 करो, ये अलग से हाईलाइट करके लिखोगे आंसर, ओके। ये देखो वर्किंग भी यहाँ पे दी हुई है, एनीवेज आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी हो उसको थोड़ा मतलब लाइंस में थोड़ा सा अलग से उसको हाईलाइट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें ऐसे स्टेप वाइज कर रहे हैं, फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करिएगा कि इस पे भी मार्क्स होते हैं, राइट। स्टेप वाइज ज़रूर करिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 18, और 20 क्वेश्चन है खाली। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजंस दैट मे अफेक्ट द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इकोनॉमी। तो देखो आपका जो है, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग ताजमहल, जब वो यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपना इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, इंक्रीज सप्लाई करेगा, ठीक है। और परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड बाय एन इंडियन, तो इससे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज कैसे करेंगे, करेंसी में फ्लोज इनटू अ कंट्री, ओके। देन डोनेशन ऑफ ₹500 मिलियन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, इससे भी क्या होगा, एक्सचेंज में चेंजेस आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडीज, इससे कुछ नहीं है, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे पूछ रहे हैं फ्लोज इनटू द कंट्री, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अगेन ऑटोनमस ट्रांजेक्शन, द मेजरमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज बेस्ड ऑन ऑटोनमस transactions, okay। Then last question, question number 20. Trade deficit must exist if a country is facing situation of current account deficit. Defend or refute the above mentioned statement with valid arguments, okay। तो current account का country have a current account deficit even without a trade deficit हो सकता है ये। Reason trade in goods, यानी कि balance of trade है, trade in services, income receipts and payments and transfers है, और country may have trade surplus भी हो सकता है, but large payment for services, income और transfers, okay। Then, if payments under services, income, and transfer exceeds receipts, the country may still face a current account deficit। तो कंक्लूजन क्या है, ट्रेड डेफिसिट क्या है, इज ओनली अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। जब आप बनाते हैं तो सीधे पहले ट्रेड अकाउंट बनाते हैं, देन करंट, एंड देन आपका वो आता है, ठीक है, लास्ट में कैपिटल। और टोटल सबको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। देयरफॉर करंट अकाउंट डेफिसिट डज नॉट नेसेसरली मीन ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट, ओके। समझ में आ गया, मतलब ट्रेड डेफिसिट अलग है और करंट अकाउंट का डेफिसिट अलग है। इट डजेंट मैटर कि आपका इसका खाली डेफिसिट में जा रहा है तो इसका मतलब है ट्रेड भी डेफिसिट होगा, ठीक है। देन ऑटोनमस का इसका सेकंड पार्ट क्या है, डिफाइन द सूटेबल एग्जांपल ऑटोनमस ट्रांजैक्शन और कमोडिटी ट्रांजैक्शंस।
in the balance of payment of an economy. ये same question जो हमने अभी differentiate between में किया था, the same thing is there. Okay, so you can just go through that. And if you like, share, subscribe, follow Economics at Ease. So keep revising, keep practicing, and remember, economics is easy when you understand it the right way. This is Economics at Ease, simplifying economics one step at a time. See you soon. Thank you. And please do watch Score Booster.